Before I begin, I have a tradition. I normally, just to get the energy and synergy of the crowd, I make them clap for some 3 times. So if you can just together follow me. थोड़ा मजा आया? Yeah, thank you once again. As she introduced me, my name is Saundar Rajan. I'm a global travelpreneur by profession and a podcaster by passion. Today on the stage, TEDx stage by Manav Rachna, I'm very delighted to come on this stage, and the theme as such suggests the escape the ordinary. My presentation or my speech is going to be attached to it because I am the product of someone who have always escaped the ordinary. From a trainee to a travelpreneur. I was a trainee, ordinary guy, but with who escaped the ordinary and become a travelpreneur. That's why it's going to be about my life, my inspiration, and my success, and also the obstacles which I had in my life which made me what I am. So, have you ever felt completely lost? In my life, I have, because not once but thrice, which changed not only my life but also people who are around me, and that made me learn something, and I'm ready to share that learning with everyone. And the rock bottom story of my life, if I can share with, that when I completed my graduation, I was completely lost. I had no guidance, no opportunities coming in. Then my principal, who was my first mentor of my life, told me to join and join a travel transport company as a trainee and start my journey from the bottom, ground level, right? So I joined a transport company as a trainee for a free lunch, no pay, just a free lunch. And the first task given to me was कि आपको आगरा जाना है. आगरा आप लोग शायद दिल्ली से गए होंगे कि सेम डे आगरा में 30 डेज डेली 5 बजे उठना है और सेम डे आगरा करके 10 बजे आना है वापस. आने के बाद 4 घंटे का सोना है, एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली डू इट फॉर 30 डेज. इट वाज अ प्रोजेक्ट. आई डिड दैट एंड आई वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे विदाउट अ हेजिटेशन. नाउ संडे सैटरडे नो ऑफ. नाउ व्हाट आई डिड वाज कि उस 30 दिन में जब मैं जा रहा था, rather than sitting with the client in an AC coach, I was to sit in a bonnet with a driver, asking him questions about that ये destination में कैसे जाते हैं उस्ताद जी, या फिर हिमाचल का ये रूट कैसा है. छोटे छोटे questions which colleges will not teach you. The practicality of whatever the travel trade industry had, I learned from that phase of 30 days. So on that moment, I learned one thing, that you need to escape the ordinary and always follow something which is in front of you. Second rock bottom story was that I had a fantastic 18 years of professional life. मैं ट्रेनी से एक वाइस प्रेसिडेंट बना MNC कंपनी का, जहाँ पे 450 लोग काम करते थे मेरी टीम में, and I used to handle a turnover of around 450 crores on that company. But there was a time when that company was bankrupted and I was back to zero. I had an opportunity. उस टाइम पे मेरे पास था कि मैं दोबारा और एक कंपनी ज्वाइन करूं और वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, but I chose to become a travelpreneur and start my own travel agency. That's why I became a travelpreneur, and it was not easy. खुद का बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं होता है. जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और अचानक से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, it's not going to be that easy. So I had financial struggle because जो कंपनी में 20 साल 12 साल काम किए, उससे फाइनेंशियल जो अमाउंट था उसके साथ साथ I had to gain the clients, new clients, and I had to build the team from the scratch. बहुत मुश्किलें आई, but I chose to escape the ordinary there also, and I chose the path of a travelpreneur, which taught me so much. Because जिंदगी में आपको जो जैसे
एक बहुत फेमस मूवी में बोलते हैं कि ज़िंदगी में आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। मुश्किल रास्ता शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ योर विजन इज़ क्लियर, इफ़ योर एंड गोल इज़ क्लियर, वो आसान बन जाता है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ ट्रैवलप्रेन्योर इन 2019। एंड अचानक से 2019 के बाद अच्छा खासा चलने के बाद आप सबको पता है क्या आया, द ग्रेट कोविड स्टक अस, एंड हम अच्छा खासा, मेरा एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू ही हो रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। एंड एज यू नो, ट्रैवल वॉज समथिंग विच गॉट स्टॉप्ड राइट अवे, बिकॉज कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा था तो घर पे थे, एंड आर कंपनी वॉज बैक टू स्क्वायर वन। वहाँ पे भी मेरे पास बहुत आसान रास्ता था, आई हैड अ वेरी इजी रूट कि हम शट कर देते हैं कंपनी, एंड जब ठीक होगा क्या होगा वी विल सी। बट वहाँ पर आई डिडंट डू दैट। वी केप्ट द कंपनी अलाइव एंड वी मेड श्योर कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, नॉट ओनली पीपल हु आर वर्किंग विद अस, मैंने क्या किया कोविड में, क्योंकि हम लोग घर पे थे, टाइम था, फ्रॉम माई फोन बुक आई यूज टू चूज अबाउट 10 पीपल, क्योंकि उस टाइम पे ना पैसे से ज़्यादा लोगों को एक भरोसा, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, था कोविड के टाइम पे, जो उनको एक कॉन्फिडेंस दे पाए। सो आई डिड दैट। आई यूज टू कॉल पीपल, माई टीममेट्स, ओल्ड कोलीग्स, कि रैंडमली 10 मिनट बात करता था मैं उनसे और समझता था कि सब आगे ठीक होगा या कुछ सीखो। मैं यूट्यूब लिंक्स उनको भेजता था कि ये डेस्टिनेशंस नया आ रहा है, ये सीखो। मैं कोविड में खुद, मेरा स्पिरिचुअल टूरिज्म में ज़ीरो नॉलेज था। आफ्टर डूइंग अबाउट 25 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, आई स्टार्टेड लर्निंग दैट स्पिरिचुअल टूरिज्म थ्रू इन दिस कोविड टाइम। एंड सबसे ज़्यादा पहले कोविड के बाद जो शुरू हुआ वो स्पिरिचुअल टूरिज्म ही था। सो वेन एवर अ क्लाइंट यूज टू आस्क कि चारधाम कैसे जाना है, कैलाश मानसरोवर क्या करना है, वो मेरा बाय हार्ट था, बिकॉज आई टुक दैट टाइम, आई एस्केप्ड द ऑर्डिनरी रूट and I took that time to learn and be the specialist. So if ये करते करते आप, when COVID started to travel start हुआ वापस, तो मैंने एक फेज लिया जहाँ पे दुबई में ऑफिस खोला, और दुबई में ऑफिस खोल के ग्लोबल ट्रैवल कंपनी का बनाया। उस पे अगेन कोविड के बाद तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। आपने जीरो से शुरू किया, बिकॉज क्लाइंट्स वापस ट्रैवल कर रहे थे, टीम्स को दोबारा वापस ऑफिस वर्चुअली हम लोगों ने शुरू किया पहले कि जूम कॉल्स पे ट्रेनिंग दें और शुरू करें वापस, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्लाइंट्स को अप्रोच करना शुरू किया। जो क्लाइंट्स थे उनके पास कॉन्टैक्ट रखा ऑल दीज वायर थ्रू व्हाट्सएप की, कुछ हम लोग नॉट कमर्शियल गेन्स बट एटलीस्ट इन टच की कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये 3 रास्ते में मैंने जो लेसन सीखा फ्रॉम दिस फेलियर्स, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट फेलियर टीच, बिकॉज मेरे से पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने यही सिखाया कि द फेलियर टीच यू अ लॉट देन अ सक्सेस। एंड आई लर्नड दैट अ पैशन विदाउट अ डायरेक्शन, बिकॉज बहुत लोगों के पास ट्रैवल एज अ पैशन या फिर कोई भी एक फील्ड हो, पैशन रहता है, इफ यू डोंट हैव अ करेक्ट डायरेक्शन ऑन दैट पैशन, योर पैशन इज वेस्ट एंड यूजलेस। सेकेंड जो मुझे समझ आया कि नॉलेज विदाउट एन एक्शन, बहुत आपके पास नॉलेज है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, मगर उस नॉलेज को आप सही डायरेक्शन में, इफ यू डोंट पुट इट द सेम वे, जैसे सर ने अपने कम्युनिटी बनाए हैं, वो बोलते हैं ना कि लोग मछली खिला नहीं रहे हैं, आप मछली मतलब पकड़ना सिखा रहे हो। सो दैट्स समथिंग विच इज टेकिंग एक्शंस। एंड थर्ड इज बिजनेस सक्सेस रिक्वायर्स नॉट ओनली, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता है, पैसे के साथ साथ आपको सिस्टम्स चाहिए, आपको प्रोसेस चाहिए, वो एक बिजनेस को फाउंडेशन देता है। दीज 3 थिंग्स मेक्स विच आई हैव लर्नड, विच आई अप्लाई थ्रू आउट नाउ ऑल्सो, कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ये 3 चीजें एक तरह से फाउंडेशन होता है। एंड एज आई सेड, फेलियर इज नॉट एन ऑपोजिशन टू सक्सेस, फेलियर इज द फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। जो आप फेलियर अपने लाइफ में, मैंने अपने 25 years में प्रोफेशनली एज एन एंटरप्रेन्योर जो भी I have come across, I have always learned and made that successful. So in this my journey from trainee to travelpreneur, मैंने ये चीज सीखा कि जो डिफिकल्टी मुझे आई, जो मुझे 25 साल लगा करने में,
इफ आई कैन शेयर दैट नॉलेज, हो सकता है आने वाले जो जनरेशन वो 2.5 साल में कराएं या 1 साल में कर लें. सो दैट्स वाई वी हैव मेड दिस कम्युनिटी ऑल्सो, जो हमारा ट्रैवलप्रेन्योर कम्युनिटी है, जिसमें मैं सिखाता हूं कि आप अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कहीं पे भी ट्रैवल में ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी में, दीज आर द डिफिकल्टीज विच कम्स. मैं यूट्यूब में पॉडकास्ट जो करता हूं, मैं लीडर्स को लेके आता हूं अपने पॉडकास्ट में, ताकि आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको सिखाऊं कि ट्रैवल में आपको अगर आना है तो ये सारे मेरी जो लर्निंग्स हैं आप उनसे सीखिए, और अपने लिए जो मैं 25 साल में कर पाया वो आप 1 साल में या 1.5 साल में कर सकते हैं. बट यू नीड टू लर्न दैट फाउंडेशन. सो मेरी पूरे जो स्पीच है उसमें से जो आई वुड लाइक टू समराइज दिस, जो मैं डे टू डे में भी अपनी टीम को सिखाता हूं और मैं खुद भी करता हूं, विच इज स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग. लोग उल्टा करते हैं, बड़ा सोचते हैं और छोटा विजन रखते हैं. आई ऑलवेज से डू इट रिवर्स. Always start small and think big, because I started very small from the ground level and I now have a global travel company. Second is that learn fast, implement faster. Blinkit का ज़माना है. आजकल आपको नॉलेज भी उसी तरह से करना होगा. जो आप आज सीख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि you need to learn fast and implement faster. Third but not the last, build people and build business. लोग आपका बिजनेस बनाते हैं, आप अकेले कोई भी बिजनेस अकेले नहीं बना सकते हैं. मैंने भी नहीं बनाया. मुझे लोगों ने जहाँ जहाँ गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए या फिर एज ए टीम साथ खड़े होना है, मेरे को लोगों ने ही बनाए हैं. एंड क्लाइंट्स जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं उनकी वजह से ही बिजनेस बनता है. सो इफ when the world is waiting, as I keep on saying that it is a manifestation, right? Because मैंने शाहरुख खान को देखा था TEDx में बात करते हुए, and I told my wife Neha that one day I'll also speak in the TEDx. Now I'm standing in front of you guys, giving this TEDx speech. It's a manifestation also, because अगर आप सोचेंगे तो I'm just an ordinary guy who have just believed that I can also. I had 4 manifestations. I wanted to write a book, write a book for myself. I became an author. I wanted to start a podcast. I became a podcaster, and TEDx is ticked off today as we stand here. And I have a 4th vision. I need to make Shah Rukh travel in my company. Like, I want Shah Rukh Khan to travel through my company, and I want to take a podcast with Mahendra Singh Dhoni. That's my vision. Yeah. On that note, will you guys escape the ordinary and become? Because मैं ये सिर्फ बोल सकता हूँ, आसान भाषा में बोले तो मैंने अगर किया है तो आप लोग तो बिल्कुल ही कर सकते हो यार, है ना? सो विल यू स्किप द ऑर्डिनरी? थोड़ा जोर से, एक और बार, विल यू स्किप द ऑर्डिनरी? थैंक यू सो मच. ऑन दैट नोट, ये मेरी टीम ने मुझे बोला है, एवरी स्टेज पे आई डू, सो जस्ट फॉर द फोटोग्राफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.